students, I am Ruchira Mukherjee. We are studying chemistry of non-metals. So today I am going to tell you about nitrogen, which is non-metal. So the atomic number of nitrogen is 7. The atomic number of nitrogen is 7 and its electronic configuration is 2, 5. Means in its first orbit there are 2 electrons and in second orbit there are 5 electrons. Under normal temperature and pressure conditions, nitrogen is found in the gaseous state. Under normal temperature and pressure, nitrogen is in gaseous state. It is the first element of group 15 in the periodic table. Nitrogen is the first element of group number 15 in the periodic table. Nitrogen is the most abundant element in the atmosphere. You know there is 78% of nitrogen in the atmosphere. At one point of time in the past, it was believed that air was an element. You know, air is mixture. Air is a mixture of gases. But at one point of time in the past, it was believed that air was an element. British scientist Black, 1728 to 99, demonstrated through some experiments that when a candle is burnt in a closed jar or beaker, it extinguishes after some time. And we can conclude that the air left inside the beaker no longer support combustion. ब्लैक ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक जलती हुई कैंडल को क्लोज जार या बीकर लेकर उसमें रखा. उसने देखा कि कैंडल कुछ देर तो जल रही है लेकिन थोड़ी देर बाद वो बुझ गई. It extinguishes. And we can conclude that the air left inside the beaker no longer supports combustion. इसका मतलब ये हुआ कि अब बीकर के अंदर जो एयर बची हुई थी वो कैंडल के कंबशन को अब सपोर्ट नहीं कर रही है. When he removed the gas formed during combustion of candle from the beaker, he found that there was another gas left behind in the beaker. जब ब्लैक ने उस गैस को रिमूव किया जो कि कैंडल के कंबशन के दौरान बीकर में बची हुई थी, तब उन्होंने देखा कि देयर वाज अनदर गैस लेफ्ट बिहाइंड इन द बीकर. तब उन्होंने देखा कि कैंडल के एक्सटिंग्विश हो जाने के बाद भी वहाँ पर जार में एक दूसरी गैस बची हुई है. एंड दिस गैस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट कंबशन. और ये गैस भी जो है, जो बची हुई गैस थी, एक दूसरी गैस, वो भी कंबशन में सपोर्ट नहीं कर रही है. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन. पर साइंटिस्ट ब्लैक ये अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. वो ये नहीं बता पाए कि दूसरी गैस कौन सी है या वो कंबशन में सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है. अल्टीमेटली वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, डेनियल रदरफोर्ड, in 1749 to 1819 was able to characterize the properties of the gas, and therefore
he is credited with the discovery of nitrogen. एक्चुअली गैस जार में जो गैस बची हुई थी वो नाइट्रोजन गैस थी, जिसके बारे में ब्लैक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पर ब्लैक के ही एक स्टूडेंट्स जिनका नाम कि डेनियल रदरफोर्ड था, उन्होंने उस गैस को कैरेक्टराइज किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, और इसीलिए नाइट्रोजन की डिस्कवरी का श्रेय जो है डेनियल रदरफोर्ड को जाता है, क्योंकि गैस जार में बची हुई गैस जो थी वो नाइट्रोजन गैस थी, और इस नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ को, उसके कैरेक्टर्स को बताने वाले डेनियल रदरफोर्ड थे, और इसीलिए नाइट्रोजन की डिस्कवरी का श्रेय डेनियल रदरफोर्ड को जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड ऑफ नाइट्रोजन प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में नाइट्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है उसकी मेथड दी हुई है। सो इन लेबोरेटरी नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग a solution of ammonium chloride and sodium chloride. Ammonium chloride is NH4Cl and sodium chloride is sodium nitride, that is NaNO2. So sodium chloride and ammonium chloride and sodium nitrate का एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद अगर उसको हीट किया जाता है तो NaCl अलग होता है, वाटर अलग होता है, और एक गैस रिलीज होती है। वो गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है। सो स्टूडेंट, सी इन द पिक्चर लेबोरेटरी मेथड ऑफ नाइट्रोजन प्रिपरेशन। दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, दिस इज स्पिरिट लैम्प, एंड दिस इज डिलीवरी ट्यूब, this is rubber tube, and here 25 grams of ammonium chloride and sodium nitrate is taken in a round bottom flask, and 100 ml water is added to it and is shaken well so that ammonium chloride and sodium nitride dissolve in water. इस तरीके से आपको 25 ग्राम्स ऑफ सोडियम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड लेना है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और 100 ml वाटर ऐड करना है। अब राउंड बॉटम फ्लास्क को अच्छी तरीके से हिला देंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी। नाउ टेक अ ग्लास ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब एंड वाटर ट्रफ and test tube, and we have to arrange the apparatus as shown in the diagram. Now this round bottom flask is heated with the help of spirit lamp, and displacement and it is gas is evolved, and that gas is collected by the downward displacement of water. So what happens? Reaction takes place, and what happens? This ammonium chloride and when sodium nitride is heated, of course ammonium chloride and sodium nitride are in aqueous form. When this solution is heated, then this reaction takes place. NH4Cl, which is in aqueous form, and NaNO2, sodium nitride, NiTride, nitride. This is also in aqueous form. When heated, NaCl, sodium chloride, and water is formed. At the same time, nitrogen gas is evolved. So in this way we can prepare nitrogen gas
in laboratory. Now, students, chemical properties of nitrogen. So, we know that a molecule of nitrogen has 2 nitrogen atoms. We always write N nitrogen as N2. So, 2 nitrogen atoms join together by a triple bond in this way. N is joined with N atom is joined with N by triple bond. So therefore nitrogen is a diatomic molecule because नाइट्रोजन के ऑलवेज 2 एटम्स एक साथ रहते हैं और 2 एटम्स मिलने के कारण ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बनता है. 2 एटम्स मिलते हैं इसीलिए उसको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं. एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एज N2. N सिंगल एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. एट ए टाइम 2 एटम्स मिलकर के डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और यही मॉलिक्यूल जो है केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है एज N2. नाउ स्टूडेंट्स, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है? नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है. अदरवाइज एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है. तो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो ये कंबाइन नहीं होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को अगर कंबाइन कराना है तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई रखना होगा एंड इट इज़ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म. सो व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स 2000 degree centigrade to form nitric oxide. N2 is a gas plus O2 is also a gas. When 2000 degree temperature is provided, then NO gas is formed. NO is nitric oxide. NO is nitric oxide. Now, reaction with metals. Reaction with metals. Nitrogen reacts with metals at high temperatures to form metal nitrides. नाइट्रोजन गैस मेटल्स के साथ रिएक्ट तो करती है बट अगेन यहाँ पर भी बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और जब हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तब मेटल नाइट्राइड्स बनते हैं. जैसे कि Li लिथियम मेटल है. जब ऑक्सीजन की रिएक्शन उसके साथ करवाई जाती है लिथियम के साथ, हीट प्रोवाइड कराई जाती है तो Li3n बनता है, लिथियम नाइट्राइड बनता है. सो इस तरह से हाई टेम्परेचर पर मेटल्स के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन मेटल नाइट्राइड्स बनाती है. Now reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. At high temperature 450 degree to 500 degree centigrade and under high pressure, that is 200 atmospheric pressure, in the presence of Fe catalyst and MO promoter, nitrogen and hydrogen reacts with one another to form ammonia. जब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस पर 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड का
टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है और प्रेशर भी बहुत हाई रखा जाता है 200 ATM तक। साथ में ये रिएक्शन होने के लिए कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है, Fe एज अ कैटलिस्ट एंड MO एज अ प्रमोटर यूज़ किया जाता है। तब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनती है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं which increase the rate of reaction without taking part in it. And here the catalyst Fe increases the rate of reaction and the promoter MO increases the efficiency of the catalyst. यहाँ पर Fe जो है कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, लेकिन Fe खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं पर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो Fe जो है कैटलिस्ट के जैसा यूज़ होता है इस रिएक्शन में, और MO जो है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। सो दिस मेथड ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रमोटर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराया जाता है, तब अमोनिया गैस बनती है। और ये जो अमोनिया प्रोडक्शन होता है, इस मेथड से जब अमोनिया का प्रोडक्शन करवाया जाता है तो ये मेथड जो है हेबर्स प्रोसेस कहलाती है। दिस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। Now students, I will tell you about uses of nitrogen. Proteins found in living organisms are compounds of nitrogen and some other elements. आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी जो है उसके सेल्स एंड टिश्यूज़ बनने में प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रोटीन के सेल्स और टिश्यूज़ फॉर्म नहीं हो सकते, और इन प्रोटीन्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन जो कंपाउंड है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन भी है, और इट इज़ यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अभी आपने पढ़ा हेबर्स प्रोसेस, इंडस्ट्री में अमोनिया का मैन्युफैक्चर करने के लिए और नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। To create inert atmosphere in packaged foods, chips packets, etc. So to keep the packaged food fresh, nitrogen gas is used and it produces inert atmosphere in the package. So to create inert atmosphere in packaged foods, chips packets, etc., nitrogen gas is used. Manufacture of useful fertilizers like urea in agricultural field. एग्रीकल्चर फील्ड में जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिया के मैन्युफैक्चर में भी नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। लिक्विड नाइट्रोजन रैपिडली एब्जॉर्ब्स हीट, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड टू फ्रीज एंड प्रिजर्व द टिश्यू सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स और टिश्यू सैंपल्स को फ्रीज करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हीट को बहुत रैपिडली एब्जॉर्ब करती है और इस तरीके से इट हेल्प्स टू फ्रीज and preserve tissue samples and blood samples. So students, in this way we have completed this topic nitrogen. In my next video I will tell you about oxygen. So students, thank you.